Good morning, students. We were covering lesson 5th of Good morning, ma'am. geography. Okay, let us start. Geography. Yes, let us start with the lesson. Today is 2nd of December. See, we are in the last month of the year. हम लोग साल के आखिरी महीने में आ गए हैं. हाँ? Yes, ma'am. And we were covering the topic atmosphere. Have a look, children. Okay, little bit of the chapter is left. Once the chapter is over, okay, I will show you, okay, one PowerPoint presentation related to the chapter so that we can have a quick recap of the chapter at the end of the lesson. Okay, now see atmosphere. As far as the atmosphere is concerned, the earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere. So what is atmosphere? Okay, the layer of gas. वातावरण. वातावरण एनवायरमेंट को बोलते हैं. हाँ, पर्यावरण. पर्यावरण. पर्यावरण भी एनवायरमेंट को बोलते हैं. एटमॉस्फेयर को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं. ओके, द लेयर ऑफ गैस दैट सराउंड्स द अर्थ. Around the earth. ओके, इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ठीक है ना? शिवेश, इज इट ओके? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है ना? इसको वायुमंडल कहते हैं. ठीक है ना? ओके, now how many layers are Yes, there? ma'am. How many layers are there in the atmosphere? I'm 5. Yes, Ma'am, 5. yes, yes, the atmosphere is okay divided, further subdivided into 5 important layers. Okay, the 5. see, this thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun rays. Okay, और आपको पता है कि हमारी ये जो पृथ्वी है, हमारी ये जो ग्रह है, पृथ्वी जो है ये गोल्डीलॉक्स जोन में है. ओके, गोल्डीलॉक्स की कहानी आपको पता होगी. गोल्डीलॉक वाज अ स्मॉल गर्ल, लिटिल गर्ल. ओके, ठीक है ना? हमारी पृथ्वी जो है ये गोल्डीलॉक्स जोन में है. और इस जोन में होने की वजह से क्या होता है? ओके, अंतरिक्ष से आने वाली जो भी हानिकारक चीजें होती हैं, ठीक है ना, वो हमारे पृथ्वी के जो इस परत है, ठीक है ना, इसमें जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं. Okay, due to okay the presence of the planet in the Goldilocks zone, all that comes from the space is returned back to space. Okay, वो सारी चीजें वापस अंतरिक्ष में जो है भेज दी जाती हैं. ठीक है ना? ओके, now see, the atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. ठीक है? So what we see, it extends up to a height of, तेज बोलिए. तेज बोले, चलो ठीक है. It extends up to a height of 1600 kilometers. Is it okay? हाँ, ठीक है. Let me check the speaker. ठीक है, it's okay. Okay, now what we see, the atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. Okay, these layers starting from earth's surface are called the troposphere. Okay, so what we see, okay, there are 5 important layers of atmosphere. Okay, important layers of atmosphere. Okay, now as far as the first layer is concerned, it is called the troposphere. ठीक है ना? Now it is called the troposphere. Okay, let me check. Okay, something related to the troposphere. Okay, okay, so you see, ये देखो troposphere दिखा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, all of you can see. मैम आप शेयर स्क्रीन नहीं की हैं. शेयर स्क्रीन नहीं किए हैं. हाँ मैम. Okay, let me see.
where do we do the share screen from? Where from we do? I don't know. कहाँ से करते हैं? I'll have to call sir. मैम हाँ, हमें share कैसे screen पता होगा? हो गया हो गया हो गया. Okay, share. Yes. Now is it okay? Yes, ma'am. Hmm? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. कहाँ गए भाई? Now you can see. Have a look, children. Okay. Yes, ma'am. इस चीज को देखो आप लोग, ठीक है ना? ये देखो, द ट्रोपोस्फियर इट इज 5 किलोमीटर्स, ठीक है ना? नीचे से अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसकी जो हाइट है, ओके, इट इज 5 किलोमीटर्स. और इसके ऊपर जो ये लेयर है, देखो, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को जो डिवाइड करता हुआ जो लेयर है, इसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, ठीक है ना? जैसे ये बाउंड्री हो गया, ओके. ये बाउंड्री जो है ये 10 किलोमीटर पे है, और ये जो है डिवाइड कर रहा है स्ट्रेटोस्फियर को और ट्रोपोस्फियर को. आप देख रहे हैं ट्रोपोपॉज जो है, इसके ऊपर आपको एरोप्लेन दिखाई दे रही है, ठीक है ना? ओके. मैम वो स्ट्रेटोस्फियर है ना? Yes, that is the stratosphere. Okay, so what we see, okay, as far as the troposphere is concerned, देखो, the troposphere is the lowest layer of Earth's atmosphere. Most of the mass, 75 to 80%, is in the troposphere. Most type of clouds are found in the troposphere, and almost all weather occurs within this layer. Okay, so what we see that as far as the troposphere is concerned, all weather related changes, all weather related changes take place in the troposphere. Okay, can you see the board, all of you? बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So what we see that in the troposphere all weather related changes are taking place. और ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्लाउड्स का प्रेजेंस होता है. ओके, हर तरह के क्लाउड्स जो है इसमें होते हैं. cirrus clouds, okay, columbus clouds, okay, all these are the different types of clouds that are present in the troposphere. Now if we have a look, okay, अब ये ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, तो देखो ये जो है स्ट्रेटोस्फियर की हाइट देखो 15 किलोमीटर, ठीक है ना? उसके ऊपर 20 किलोमीटर पे जो है हमारा ओजोन लेयर है. ओके, इट इज दिस लेयर. ओके, द ओजोन लेयर जो है, ओके, ट्रोपोपॉज के ये जो 10 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है एरोप्लेन चलते हैं, ठीक है ना? तो देखो ओजोन लेयर जो है, व्हाट इज द ओजोन लेयर? कैन एनीबॉडी टेल मी what is the ozone layer? The layer which मैम जो मैम हिंदी में बताइए. the layer which protect us from harmful rays of Direct rays of the sun. Yes, okay. Okay, so what we see, okay, which protect us from UV rays of sun. yes, okay, it protects us from the ultraviolet rays of the sun. Okay, now let us see what is the stratosphere. Okay, now have a look, children. See, ये देखो स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, और स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, इन दोनों को जो बाउंड्री डिमार्केट कर रही है, ठीक है ना? इन दोनों को जो बाउंड्री डिमार्केट कर रही है उसे हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं. ओके, ठीक है ना? इट इज द बाउंड्री लाइन जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, इसको हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं. और इसकी, ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटो, ओके, स्ट्रेटोस्फियर रहता है. ठीक बात है. बात बना उलैतवा वाला के रूपे ऑन दिखाई दे. ओके, मैं somebody, डायग्राम है उसे हम लोग कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं. नहीं बेटा, आपकी बुक में डायग्राम है, आपकी बुक में देखो डायग्राम है, आप वहीं पे जो है डिमार्केट कर सकते हो. पेंसिल से डॉट 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 लाइन बना के वहीं पे आप हाइट लिख लीजिए, कितना किलोमीटर हाइट है,
और वहीं पे आप ट्रोपोपर्स, स्ट्रेटोपर्स वहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? Okay, ma'am. ओके, मैम ओजोन Yes, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। यस, ओके। देखो, ओजोन एन अनयूजुअल टाइप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट इज रिलेटिवली abundant in the stratosphere heats this layer as it absorbs energy from incoming ultraviolet radiation from the sun. Temperature rise as, okay, one moves upward through the stratosphere. ठीक है ना? तो ओजोन क्या है? ओके, ओजोन इज द लेयर, ओके, दैट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है ना? ओके, एक प्रकार का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है जो वहां पे जो हीट रहती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना? और एब्जॉर्ब करके जो है हमें जो है एक छन्नी की तरह ये काम करता है, और जो सूर्य की जो किरणें हैं जिनमें बहुत ताप होता है, ओके, उनको फिल्टर करके फिर अर्थ के पास जो है आने देता है, ठीक है ना? ओके, नाउ लेट अस, Yes, ma'am. okay, now let us try to go through the another layer, okay, which is the mesosphere. Mesosphere. Okay, our third layer, that is the mesosphere. Mesosphere. Mesosphere, okay, now have a look at the mesosphere. So see, as far as the mesosphere is concerned, you can see, okay, ये जो है स्ट्रेटोपॉज के ठीक ऊपर है, ओके, और इसकी हाइट लगभग जो है 80 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना? अब देखो, जो थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर को जो बाउंड्री डिमार्केट कर रही है वो 90 और 80 किलोमीटर के बीच में है, और उसको क्या कहते हैं? उसको मेसोपॉज कहते हैं, ठीक है ना? तो आपके बुक में डायग्राम है, आप वहीं पे डॉट 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 लाइन बना सकते हैं दोनों के बीच में, ओके, इट्स इनसाइड माय बैग, ओके, और उसको हम जो है मेसोपॉज कहते हैं, ठीक है ना? अब इस चित्र को अगर आप देखोगे तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि ये जो रॉकेट्स हैं, ठीक है ना, रॉकेट्स जो है मेसोस्फीयर की तरफ जो है ये मूव कर रहे हैं, ओके, और आप क्या देख सकते हो? आप देख रहे हो कि ये देखो मेटेओराइट्स जो है इसमें आके बर्न कर रहे हैं, ओके, सो इट इज yes, व्हाट वी ma'am. सी, तो वी कैन से दैट स्ट्रेटोस्फीयर, as far as the stratosphere is concerned, स्ट्रेटोस्फीयर इज द लेयर, इट इज आइडियल फॉर फ्लाइंग प्लेन्स, क्योंकि हमने क्या देखा? हमने प्लेन को टेक ऑफ करते हुए भी देखा, ओके, फ्लाइंग प्लेन्स, क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्लाउड्स ना के बराबर होते हैं, एंड देन यू हैव द मेसोस्फीयर. सो मेसोस्फीयर इज द लेयर, ओके, इन विच द मेटेओराइट्स द बर्न. मेटेओराइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उल्का पिंड। यस, उल्का पिंड। उल्का पिंड। हाँ, तो जैसे ही जो है उल्का पिंड इस परत में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना, वो जलने लगते हैं, ओके, हाँ, नीचे का नहीं दिख रहा है। मैम प्लीज कैमरा को थोड़ा सेट कर दीजिए। नाउ यू कैन सी. नो मैम। नो मैम, अभी भी नहीं दिख रहा उतना क्लियर। क्या नहीं दिख नो रहा मैम है? अभी भी नहीं दिख। मैम बोर्ड मैम जो आप मैम स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे जो आप बारे में वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं पहले ये आपको डायग्राम दिखा दूं, उसके बाद आपको बोर्ड ये कर दूंगी, ओके, ओके ओके मैम। ओके, नाउ हैव अ लुक एट द लास्ट वन, ओके, दैट इज द थर्मोस्फीयर. नो मैम एक्सोस्फीयर भी तो है ना। नो नो, एक्सोस्फीयर इज द लास्ट वन. आपके पास बुक है फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो. दिस इज मैम 5 टाइप्स होते हैं नो ना। मैम Yes, बेटा. एक्सोस्फीयर भी तो मैम है। एक्सोस्फीयर भी तो है। मैम थर्मोस्फेयर पहले है। यस मैम थर्मोस्फीयर यस मैम पहले। पहले थर्मोस्फीयर उसके बाद पहले थर्मोस्फेयर उसके बाद एक्सोस्फेयर है। यस, पहले थर्मोस्फीयर आएगा, उसके बाद आपका एक्सोस्फीयर आएगा, एक्सोस्फीयर आएगा। ओके. यस मैम। In this the diagram Okay, is ma'am. not there, okay, let us have a look. इसमें यही डायग्राम आ रहा है, ओके, और रोरा दिखा रहा है, इट इज शोइंग अरोरा, मैम अरोरा क्या है? ओके,
I will let you know. मैम अरोरा चलो ये देखते हैं. Have a look. Okay. See, this is the diagram that is related to the thermosphere. Okay. तो हमारे थर्मोस्फेयर में जितने भी सैटेलाइट्स हम लोग छोड़ते हैं स्पेस में, ठीक है ना. ओके, दे आर सीन इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ये जो अंतरिक्ष है, ठीक है ना. देखो, सी द हाइट ऑफ द थर्मोस्फेयर इज 90 किलोमीटर. ओके, and what we see, these are the diagrams related to the thermosphere, okay, and exosphere. Now let us have a look. See, this is the diagram that is related to the thermosphere. इसमें कुछ clear नहीं है. Wait a second. इसमें भी यही सब आ रहे हैं. So we can go through this layer. See, have a look. देखो, इसकी ये जो ऑरोरा, ओके, इसमें ऑरोरा का जो है जिक्र हो रहा है. मैं अभी आपको बताऊंगी ऑरोरा क्या कहते हैं. तो देखो, ये जो थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर के ऊपर बच्चे मुझे जो है लास्ट टाइम जब मैं बोल रही थी तो बच्चे कह रहे थे कि नहीं मैम, थर्मोस्फेयर में ही जो है सैटेलाइट्स होते हैं और स्पेस स्टेशन होता है. ऐसा नहीं है. ओके, the outermost layer, it is the exosphere, okay, in which you have the, okay, all space related activities taking place. So you can see the international space station. मैम आपकी आवाज कट जा रही है. मुझे तो आपकी आवाज कट कट के ही सुनाई दे रही है, ठीक है ना. तो देखो यहाँ पे ये जो थर्मोस्फेयर है, as far as the thermosphere is concerned, let me tell you children, okay, the thermosphere is, why it is important? The thermosphere is important, okay, because in this thermosphere there is a layer, okay, which is called the ionosphere. Okay, and what we see in thermosphere, all radioactive transmissions takes place. ठीक है ना, all radioactive transmissions take place in the, okay, thermosphere. तो इसीलिए जो है इसमें जो है रेडियो एक्टिव जो है ट्रांसमिशंस इसमें हो सकते हैं. और इसके ऊपर जो है हमारा है एक्सोस्फीयर, जिसमें आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस है एंड ऑल रिलेटेड, ओके, टू स्पेस एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस. ओके मैम आप अभी आयोस्फीयर के बारे में बोलिए मैम, वो कहाँ है? इट इज इन द थर्मोस्फीयर बेटा. एनोस्फीयर मैं आपको इमेज भेज दूंगी. आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट शेड्यूल, ठीक है ना. मैं स्टेबल अदर देन द गैसेस, व्हाट एल्स इज मैम डस्ट like stone. dust particles, isn't it? हाँ, Yes ma'am. yes ma'am, दस पार्ट. Yes, ma'am. ये जो डस्ट पार्टिकल्स जो वायुमंडल में मौजूद होते हैं, जब ये वाटर वेपर के कांटेक्ट में आते हैं, ओके, जब ये वाटर वेपर के कांटेक्ट में आते हैं तो यही आगे चल के जो है क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं, isn't it? Okay, they form the Yes, ma'am. clouds. Okay, so Cloud. what we see that, okay, other gases like carbon dioxide, argon and others comprise 1% by volume. What is the percentage composition of carbon dioxide? मैम 0.3. 0.3. 0.03. 0.3. 0.03. It is 0.03. 0.03 है. Okay, the percentage Okay, ma'am. the percentage composition of carbon dioxide is 0.03. Okay, ठीक है ना. Okay, ma'am. और उसके अलावा जो है 0.97 जो हो गया वो आपके इनर्ट गैसेस हो गए. बार बार मैं आपको बता रही हूँ, इनर्ट गैसेस जो है उनका उतना प्रभाव नहीं होता है, जिसमें आ गया आपका हीलियम, आर्गन, नियॉन.
Okay, helium, argon, neon, these are the inert gases. Okay, so what we see, composition of air. As far as composition of air is concerned, okay, मैम ऊपर का नहीं दिख रहा है. हम ऊपर का नहीं दिख रहा है. अरे रुक जाओ भैया. And 20 problem. 21% oxygen, okay, then 0.03, okay, percent carbon dioxide, Carbon dioxide. and 0.97, okay, other gases, other inert gases, okay. And in inert gases में जो है आएंगे आपके, okay, helium, neon, argon, okay. इसके अलावा आपके जो है dust particles and what, and vapor, water vapor, okay, it is there in the atmosphere. Okay, so what I have written on top, I have just written the composition of air, और कुछ नहीं लिखे हैं. Now is it visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so Yes, ma'am. this is the composition of air. Okay, the air मैम comprises 0.3 के नीचे क्या लिखे हैं? 0.97 लिखे हैं बेटा, other inert gases, ठीक है ना. ओके, वो गैस जिनका ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, ठीक है ना. उसमें आ गए आपका हीलियम आ गया, उसमें नियॉन आ गया, उसमें आर्गन आ गया. इसके अलावा वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और ओके वाटर वेपर भी होता है, ठीक है ना. Now see, carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. The density of atmosphere varies with height. Okay, we know this. As we move higher, what we see, the mountaineers, they have to carry oxygen along with them. Okay, who was the first Indian woman to climb the Mount Everest? बचेंद्री पाल. बचेंद्री पाल. Yes, Bachendri Pal. it is मैम Bachendri Pal. बचेंद्री पाल. और पहली महिला, विश्व की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था उन्होंने, she belonged to which country? मैम इंडियन अमेरिकन. नेपाल. No, नेपाल. no, she belonged to Japan. Okay, she belonged to Japan. Okay, ठीक है. Now Shivangi will tell us tomorrow who that lady was. She belonged to Japan. Okay, now can you tell me who was the No, first, ma'am. who was the first person to climb the Mount Everest? माउंट एवरेस्ट पे सबसे No, पहले ma'am. चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे विश्व के? अरे हाँ, ऐसे ही करोगे आप लोग? मैम मुझे पता है. बोलो. मैम एडमंड हिलरी ऐसे न्यूजीलैंड के थे. और भारत के कौन थे? भारत के भी एक व्यक्ति थे ना. Was it यस मैम. Tenzing Norgay Sherpa? यस मैम यही थे. यही थे. चलो, श्रेया को तो याद है. हाँ, सर एडमंड हिलरी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड ओके Tenzing Norgay Sherpa फ्रॉम ओके नेपाल, ठीक है ना. ओके, was from India. Okay, now have a look children. See, you know the climbers experience problems in breathing. Okay, due to this decrease in the density of air, घनत्व जो है, okay, वायु का घनत्व जो है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वो घनत्व जो है वो कम होते जाता है. हवा की जो परत है वो पतली होती जाती है, ठीक है ना. ओके, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से माउंटेनियर्स, पर्वतरोही जो होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स. As we go upwards, the atmosphere exerts pressure on the earth. Okay, this varies from place to place.
Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as underline this part. हवा जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ ही मूव करती है. क्यों? ओके, क्योंकि लो प्रेशर जहाँ पे रहता है वहां पे हवा जो है क्या होती है, गर्म. जब हमारे पृथ्वी का जो सतह है, जब वो वहां पे अधिक तापमान जब हो जाता है तो गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ मूव करती है. व्हेन द अर्थ गेट्स हीटेड, सपोजिंग दिस इज द अर्थ सरफेस, सपोजिंग दिस इज द अर्थ सरफेस, एंड what we see due to the sun, सूर्य की किरण की वजह से जो है ये जो है गर्म हो रही है. अब क्या होगा, जैसे ही जो है पृथ्वी की सतह जो है वो गर्म होगी, गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी. दिस इज द हॉट एयर मूविंग, and when the hot air is moving, a low pressure area is created here. अब यहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया जो है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा और ठंडी हवा जो है यहाँ पे जो है आके उसका जगह ले लेगी. Yes, here the cold air will come. So what we see, air always moves from high pressure area to low pressure area. Is that clear? Is that clear? Yes, ma'am. Okay. Now what we see, the last one, that is the biosphere. अब हम लोग biosphere के बारे में पढ़ेंगे. Now let us have a look at the biosphere. जैसा कि चित्र आपके बुक में दिया गया है, देखो biosphere का चित्र दिया गया है. देखो ऊपर आपके एक तरफ एटमॉस्फेयर है, इधर लिथोस्फेयर. Yes, ma'am, दिया गया है. And then you have the hydrosphere. And all these three layers, atmosphere, hydrosphere and Lithosphere. ये Lithosphere. Biosphere. तीनों मिलकर. Now let us see what is the biosphere. अब biosphere को अगर हमें define करने को कहा गया तो हम इस biosphere को कैसे define करेंगे? Now see what is biosphere. As far as the biosphere is concerned, it is the narrow zone of contact. I have told you earlier also. It is a narrow zone of contact in which, in which land, air, land and water. ठीक है. तो लैंड की जब हम बात कर रहे हैं तो लैंड में क्या आ गया, लैंड में आ गया लैंड में आ गया आपका लिथोस्फीयर. एयर में आ गया एटमॉस्फेयर और वाटर में आ गया हाइड्रोस्फीयर. ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ. टू सपोर्ट लाइफ. So this is the proper definition of biosphere. और ये biosphere जो है plant and animal kingdom, ठीक है ना, plant and animal kingdom together, ये दोनों मिलके biosphere तैयार करते हैं, ठीक है ना, together make the biosphere. तो अगर ये बायोस्फीयर नहीं रहेगा तो हम जीवन के बारे में नहीं सोच सकते हैं. देखो पौधे जो होते हैं वो जानवरों पे निर्भर होते हैं और जानवर जो होते हैं वो पौधों पे निर्भर होते हैं. हमें पता है कि अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं. हर्बीवोर्स आर देयर, कार्निवोर्स आर देयर, ओमनीवोर्स आर देयर. सो हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो किस पे फीड करते हैं? दे फीड ओनली ऑन द प्लांट्स, इजंट इट? ग्रास एंड द प्लांट्स. So if they are not getting the plants, if they are not getting the grass, how they will survive? They can't survive ना. हाँ, और आपको पता है कि ये जो animals होते हैं, the animals, they are helping the plants in what? They are helping the plants in providing the plants with what? CO2, isn't it? पौधों को जो है CO2 चाहिए. Yes, ma'am, carbon dioxide. Yes, for the process of photosynthesis to take place, they need the CO2, and where from they are getting the CO2? They are getting the CO2 from the animals. From animals and humans. Yes,
Animals, they release CO2 and they take in oxygen that is there in the atmosphere. Okay, so what we see, they are interrelated and they are also interdependent on each other. The biosphere is the narrow zone of contact ये कौन आया है? between the land, वही water कौन थी? and air. नीचे Aman, will you mute yourself? It is in this zone that life that is unique to this planet exists. There are several species of organisms that vary in size, farm microbes and mammals. We know that the plant kingdom, it is called what? Plant kingdom को हम क्या कहते हैं? Ambuj? Plant Forest. ना, plant kingdom को हम flora कहते हैं. Okay? Plant kingdom इसको जो है एक अलग शब्द हम इनके लिए इस्तेमाल करते हैं. प्लांट किंगडम के लिए उसको हम फ्लोरा कहते हैं और एनिमल किंगडम को हम फौना कहते हैं. FAUNA, फौना. ओके, सो वी यूज द वर्ड्स. मैम एनिमल में ही ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाते हैं. यस, ह्यूमन बीइंग्स, दे आर होमो सेपियंस. ओके, दे कम इन दिस कैटेगरी ओनली. नाउ हैव अ लुक चिल्ड्रन. All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. Okay, the organisms in biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. So now you know the plant kingdom is called flora and the animal kingdom is called the fauna. Okay, the three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forest for fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Okay, अगर आप पेड़ पौधों को काट देंगे तो क्या होगा? Okay, आप जब पेड़ पौधों को काट देंगे तो जो मिट्टी है, ठीक है ना, उसको मिट्टी जो है, जैसे ही हवा बहेगी या खूब तेज बारिश होगी, मिट्टी की जो परत है वो बह के चली जाएगी. ठीक है ना? यस मैम. ओके, अब जब टॉप सॉइल जो है इरोड हो जाएगा, तो इसलिए बाकी देखिए मैम अगर प्लांट रहता तो उसका रूट उसको पकड़े रहता. yes, the roots of the plants, they bind the soil. The roots of the plants, okay, bind the soil. ये मिट्टी को जो है बांध के रखते हैं. ठीक है ना? और जब ये कट जाएंगे उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the process called in which you cut the trees? What is the process called? The process of cutting. Deforestation. And what is the process in which you plant the trees called? Afforestation. Afforestation. Okay, और हमारे देश में जो है, okay, पौधों को लगाने से संबंधित एक पर्व मनाया जाता है. Can you tell me what? A festival is celebrated. वन महोत्सव. Yes. वन महोत्सव. वन महोत्सव. ठीक है ना? वन महोत्सव. हाँ. ओके, और आपने अपने बुक में जो है आनंदी की कहानी पढ़ी होगी. आनंदी कैसे अपने पूरे गांव को बचा लेती है, पेड़ पौधों को कटने नहीं देती है. क्लास 5 में पढ़े थे ना आप लोग ईवीएस में? यस मैम. यस मैम. यस मैम पढ़े थे. पता नहीं कौन है ये बोल रहा है नो मैम. हाँ? Now see children, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes. Okay, तो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो है, okay, हम क्या देख सकते हैं? पृथ्वी का जो सतह है उसमें जो है बहुत सारे बदलाव हम देख सकते हैं इन प्राकृतिक आपदाओं के चलते. फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली. आपको पता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है, ओके, 2004 में जो है आपने देखा होगा, ओके, कि वहां पे जो है सुनामी आया था. एंड व्हाट इज सुनामी? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सुनामी? सुनामी इज अ जापानीज वर्ड. ठीक है ना? ये जापानी शब्द है. ओके, इज अ जापानीज वर्ड मीनिंग व्हाट? Meaning harbor wave. Okay, harbor wave. Tsunami is a Japanese word meaning harbor wave. Okay,
और जब सुनामी क्यों आता है? जब ओशियन फ्लोर जो होता है, ठीक है ना, समुद्र के स्तर में जब भूकंप आता है, ओके, तब हम सुनामी एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, what happens when an earthquake takes place in the ocean floor? Okay, there is submergence of one plate and the other plate. आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पता है, you know what are टेक्टोनिक प्लेट्स? ओके, जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सारे अपने अपने प्लेट पे स्थित हैं। जब कभी भूकंप आता है ओशियनिक फ्लोर में, ओके, एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट से जो है वो अलग हो जाता है। ओके, इट मे हैपन द प्लेट्स आर लाइक दिस, इट मे हैपेंस, ओके, द प्लेट गेट्स सबमर्ज्ड, ठीक है ना, उसकी पोजीशन जो है थोड़ी नीचे आ गई। अब क्या होगा? ओके, यहाँ पे मान लो सी कोस्ट है, तो जितना भी पानी है वो इस गैप को फिल करने के लिए पुश बैक करेगा। ओके,